maintaining the ethos, ethics, and tradition of India, along with all the revered principles of different DAV institutions, Jharkhand Zone H. Honorable Chairman Sri Santosh Tulsian ji, illuminating the lighting of the wisdom lamp. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। प्रकाश का द्योतक है तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। समस्त शुभ कार्यों का आरंभ हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। And alumni of DAV institutions, give a huge round of applause. So please. Respected chairman of the school, the director of the institution, the principal of GT DAV Public School, Devghar, both Kasra Town and Bhandarkola, the principals of the school who have come from different districts and other areas apart from Devghar, the senior members, Tarak ji, the founding members of the school, and other teachers who are present on this auspicious occasion. A very good morning to you. I feel extremely honored to be part of this program or the capacity building program which is going to take place in the upcoming 3 days. Apart from being honored, I am also very overwhelmed seeing around 500 teachers sitting in front of me, and I being on the other side, being very nervous. I don't know what to speak before you, the teachers who have taught me, and I'm here to give Gyan, the so-called Gyan to you. The teachers have taught me science, physics, maths, Hindi, Sanskrit, but I failed to grasp any of the shairis and the motivating quotes that people give everywhere around India. So I'll put my thoughts in plain, simple words. The things have changed. What started as a journey of quiet and humble student in class 4th, filling in some of the grades of science, to being one of the toppers in the schools and going on to pursue my dreams. I didn't even know what an IS mean at that point of time when I was preparing for JEE in class 12. I just wanted to get into some kind of college in class 12, and then something hit me. The kind of education that the teacher imparted actually revealed the part of myself which I was not able to contemplate before. So I felt that mere education, getting a technical hand or knowing some technical details or earning a lot of money was not enough. There was something in me missing. I also worked for some time in the engineering background. So it felt that the purpose of life is not just getting education and earning a lot of money. It is also about giving back to the society which you teachers are already giving. So one of the reasons for coming into this field of public service was this. Coming to India, it is imperative that we talk about it. It's been around 15 years since we have been in the phase of demographic dividend. The demographic dividend is the phase where the number of people in the youth category, in the age group 17 to 35 years or 42 years in the defined definition is maximum. So India is currently in its demographic dividend phase. Why do we call dividend? Because we feel that the youth of any country contribute more to the economy of the country compared to other age groups. The child is not very skilled. The old people are also skilled, but in terms of energy and expertise, they are going down in the age. So the age group of 17 to 42 now is considered to give dividends to the society in terms of machinery, in terms of expertise, in terms of skills. But unfortunately, the state of education in India has not been very good. Why? Why so? We have not been able to. You see, before 5 years, all of us in the government sector were talking about demographic dividends. Now hardly anybody talks about it. What has happened? It is because of the lagging effect that keeps on showing on the people who have been trained. अगर 2000 से लेकर 2015 तक पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो 2015 के बाद से 2030 तक उनका स्किल्स नहीं नजर आएगा. ये 15 साल के गैप के बाद होने वाला है. We understand that we have been training teachers, we have been organizing capacity building program for the teachers,
इन द लास्ट 10-12 ईयर्स। उसके पहले सिंपल होता था कि एक टीचर की बहाली हो गई, भर्ती हो गई, दे वेंट ऑन क्लासेस और कुछ पढ़ा दिए, अपने अपने टेक्निकल पार्ट्स को पढ़ाया और वापस आ गया। पर ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करिकुलम, इट इज वेरी गुड टू सी यू पीपल गैदरिंग हियर इन सच लार्ज नंबर्स एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस अमंग देमसेल्व्स। मेरी टीचर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपस में कुछ बातें करके डिस्कस करेंगे, अपने नॉलेज से ही नॉलेज गेन करेंगे, तो विच इज़ वेरी गुड। हमको पता कैसे चलेगा कि बाकी स्कूल्स में चल के आ रहा है जब तक हम उनसे इंटरैक्ट नहीं करते। तो ये प्रोग्राम उसके महत्व को बहुत बताता है जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऑलरेडी इम्बाइब है कहीं ना कहीं, कि एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है, पीयर लर्निंग से लर्न करना है और एक साइलो में नहीं जीना है। कोई भी स्कूल सिंगल नहीं है। फॉर्चुनेटली DAV हैज बीन द पायनियर इन द चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बीन टीचिंग व्हाट स्टार्टेड एज एन आइडिया इन 1886 through a school by Mahatma Hansraj has turned out to be a very successful enterprise in the entire country. This is, I believe, DAV is one of the most successful enterprises in the country, with hundreds of schools across the nation producing not just engineers, not just public servants, but also experts in different fields, including prime ministers and finance ministers and actors and whatnot, who are going outside and getting huge name for India. And that shows the legacy of DAV that we carry, that you carry. Also, since we have come this far talking about technical education and the need for the training, it is imperative to say that the need for ethical education in Indian system is very, very important. And when I say ethical education, it does not mean just reading about moral education. Let us see this way, कि क्लास 12 तक जब पढ़ाई होता था तो मोरल एजुकेशन वॉज जस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन। 5 श्लोकास पढ़ लिए, विद्याधन ददाति विनयम पढ़े हैं, और योगा के क्या पाठ होते हैं ये पढ़ लिए हैं, धर्म के क्या पाठ होते हैं, अस्तेय क्या होता है, सत्य अहिंसा क्या होता है, पढ़ के एग्जाम लिख लिया एंड दिस इज ओवर। उसके बाद हार्डली को याद रखते हैं। वाई आई एम कमिंग बैक टू दिस, कि जस्ट टेक्निकल एजुकेशन इज नॉट इनफ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन बहुत बढ़िया इंजीनियर हो सकता है, एक पर्सन बहुत बढ़िया डॉक्टर हो सकता है, लेकिन एथिकली ही माइट बी कॉम्प्रोमाइज समवेयर, वरना इंडिया में इतने क्राइम्स नहीं हो रहे होते। एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरीबडी। बोलते हैं कि पब्लिक सक्सेस, मतलब व्हाट वी शो इन द आउटसाइड, पब्लिक सक्सेस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ प्राइवेट स्क्रूपलनेस। पर्सनल डिसिप्लिन का पब्लिक सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान बहुत सक्सेसफुल हो सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, एक बहुत बड़ा इंजीनियर अपनी कंपनी का डायरेक्टर है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा आदमी है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों में बस एक रिलेशन है कि सक्सेसफुल आदमी अपने टाइम्स और मैनेजमेंट को लेकर सक्सेसफुल बन जाता है, बट अपने प्राइवेट लाइफ में एक आदमी तभी सक्सेसफुल बनता है जब उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, जब उनको एजुकेशन अच्छा मिला होता है। दैट इज वेयर द रोल ऑफ टीचर्स बिकम ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। वहाँ पे आते हैं, एक बार बात करते हैं कि क्या बैक टू माई रूट्स, DAV से आए हैं तो थोड़ी DAV की बात कर लें। पढ़ाया जाता था हमें कि 8 देयर आर अष्टांग लिम्स ऑफ योगा। स्टार्ट करते थे, सबसे पहला होता था यम, विच आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट शेप यू, सत्य अहिंसा अस्तेय। यम के बाद आता था यम नियम। नियम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटीज विच यू नीड टू फेस। मॉडर्न जमाने में देखे, एक बच्चे के ज़माने में देखे, उस समय ये जो योग हुआ करता, पहले जो योग हुआ करता था वो फिजिकल अटेनमेंट के बारे में था, एक स्पिरिचुअलिज्म को अटेन करने के बारे में था। पर मॉडर्न टाइम्स में ये योगा मॉडिफाई हो गया है। अब जो यम है वो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है जो आपको आपके कंडक्ट को शेप करते हैं। नियम ऐसे हैं जो आपकी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी कंट्री के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, और एज ए इंडिविजुअल एज अ होल। यम नियम आसन, द काइंड ऑफ कंडक्ट दैट वी डू। पहले वो योगा का पोज होता था कि आसन में, किस आसन में बैठते, पीठ स्ट्रेट होना चाहिए और कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, जो पतंजलि के बुक में लिखा है। आज के दिन में आसन है जो रूप आप धारण करते हैं, किस रूप में आप बैठते हैं। आप बैठे हैं तो इंसान हैं, आप बैठ के सोच रहे हैं तो आप बुद्ध हैं, बस इतना सा का फर्क है। उसके बाद आता है प्राणायाम, द एक्सरसाइज दैट वी डू। एक्सरसाइज वो आपका एक मेडिटेशन है, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो आता है प्राणायाम में। प्रत्याहार में आता है द विड्रॉवल, क्या छोड़ना है। लेने की बात तो हो गई, प्रत्याहार में छोड़ना क्या है। मोबाइल की बात करते हैं, इतने टेक्निकल, इट हैज़ बीन रियली हार्ड। सबसे जो रिजिलियंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना पूरे सोसाइटी में, मुझे लगता है वो टीचर्स होता है। से फॉर एग्जाम्पल कि कोविड के टाइम पे कोविड हुआ था,
तो बच्चों का क्या था, हम लोग दिल्ली में थे उस समय, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, सेम गोस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी कि स्कूल बंद हो गया 6 महीने 8 महीने के लिए। सबसे टेंशन में थे जो टीचर्स थे और डायरेक्टर्स थे कि वापस लाना कैसे उन्हें, क्या कर दे ऐसा कि बच्चों को पढ़ाई मिल जाए। बच्चे तो खुश हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें थोड़ी पता होता है कि उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो जब कोविड हिट किया तो पता चला कि टीचर्स वर द फर्स्ट इन लाइन टू थिंक कि बच्चों को करना क्या है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अभी एज ग्रुप 1 से 18 के बीच में है। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री। वहाँ पे टीचर्स ने बताया हाउ रेजिलिएंट कैन बी। पता नहीं कैसे वो वहाँ पर 6-7 महीने के अंदर एवरी स्कूल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल एजुकेशन। वेयर डिजिटल एजुकेशन वाज लग्जरी बिफोर 2019। स्मार्ट क्लासेस बोलते थे, आज के दिन में स्मार्ट क्लासेस हर एक स्कूल में होता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने डायरेक्ट कर दिया ऊपर से या पैसे दे दिए आपको अचानक से। ये ऐसे हुआ कि आपने सोचा कि बच्चों को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आप चाहते तो 1 साल के लिए छुट्टी कर देते, उस समय प्राइवेट कोचिंग वाले ने छुट्टी कर दिया था। आई रिमेंबर आई वाज देयर इन दिल्ली इन 2020 में 5 महीने हुआ था मेरे प्रिपरेशन का। जो कोचिंग में मैं पढ़ाई कर रहा था दे ऑल शट डाउन। उनको 1.5 साल लगा वापस खोलने में, तब तक मेरा यूपीएससी हो भी गया। लेकिन व्हाट आई सॉ कि कुछ विद्यांजलि प्रोग्राम वगैरह चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। मुझे पता चला थ्रू द टीचर्स आई वाज कनेक्टेड विद, उनसे पता चला कि दे हैव ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड देयर क्लासेस इनटू ऑनलाइन क्लासेस। टीचर्स जो कैमरा में फोटो नहीं खिंचाते थे वो आज ऑनलाइन वीडियोस बना रहे थे अपने खुद के, कॉन्फिडेंटली 1.5 घंटे बैठा के पढ़ा रहे। 2+2 4 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो दैट शोज द रेजिलियंस दैट यू पीपल कैरी फॉर द स्टूडेंट्स एंड द केयर दैट इज रिक्वायर्ड टू नर्चर द स्टूडेंट्स। 3 नियम और बन गए थे, वो है ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान धारणा के बारे में जितना बताएं उतना कम है। इट इज़ अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ पर्सन। बैठते हैं, सोचते हैं करना क्या है लाइफ में। ये कोई नहीं सिखा सकता, ये टीचर्स भी नहीं सिखा सकते, ये हर इंडिविजुअल को जानना है। पढ़ा सब सकते हैं, एक्सटर्नल नियम में सब जा सकते हैं, नियम में सब जा सकता है, लेकिन ध्यान धारणा जो होना है ये शांति में अकेले बैठ के होना है। उसे लेना है, लेना है, समझना है। दैट इज फाइंडिंग हैप्पीनेस, पर हैप्पीनेस कुछ होता ही नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट सेल्फ बीइंग इज हैप्पीनेस। फाइनली है समाधि, विच इज द अब्जॉर्प्शन। पुराने जमाने में समाधि से जोड़ते थे, आज के ज़माने में समाधि इज़ नॉट मोक्ष। समाधि तब आप अटेंड कर लेते हैं कि आपने जो चाहा वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, दैट इज समाधि। ये थे योग के 8 नियम मॉडर्न टाइम्स में जो डीएवी के वैल्यूज़ को भी दर्शाते हैं। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलेगा, नॉट जस्ट डीएवी बट एप्लीकेबल टू ऑल द टीचर्स इन इंडिया, कि पढ़ाई टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ एथिकल वैल्यूज़ भी मिले। कहते हैं कि जब आगे बढ़ जाएंगे, आप टीचर्स से रिटायर कर जाएंगे, स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट बी मेजर्ड इन द मार्क्स दैट दे स्कोर इन फ्यूचर। दैट विल बी मेजर्ड in terms of the kindness, the love and the empathy they show towards people when they are in need. तो उनको ये पढ़ाना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि इन मीडियम से जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अभी चल रहा है और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आपके साथ आने वाले हैं, इन चीज़ों के माध्यम से वो हम लोग अटेंड कर पाए। सो थैंक यू ऑल। बहुत टाइम नहीं लूँगा, धूप बहुत हो रही है, असेंबली में बहुत बार बेहोश होते बचा हूँ, तो आज दिस वॉज माई टाइम टू टेक अ बदला ऑन यू पीपल। धूप में खड़ा करके, एंड दैट मेक्स माई लाइफ लिटिल मोर सक्सेसफुल, टर्निंग फुल सर्कल इन लाइफ। सो वेल, I'll end my speech with a quote which Dr. APJ Abdul Kalam wrote in his book. For all your days prepare and meet them ever alike. When you are the anvil bear, when you are the hammer strike. Thank you.